Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Let's start reading page number 122. Recent importance ये यहाँ से है ये recent important migrations. Recent जो अहम migrations हुई हैं. This map show the recent major migrations across the world. Number refers to the arrows showing the movement. Arrows जो हैं और numbers यहाँ show कर रहे हैं 1 2 और ये टोटल आपको 12 से ज़्यादा ही फिगर्स हैं वो बताए जा रहे हैं माइग्रेशंस के। नेक्स्ट जो है वो की बता दी गई है कि कैरिबियन टू यूकेन है, वेस्टर्न ये कहाँ कहाँ पे फर्स्ट की सेकंड की ये आपको हेल्प हो जाएगी। चेचनिया नेक्स्ट आपका यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। चेचनिया टू सेंट्रल एशिया ये 1940s में हुई। इन 1944 द सोवियत लीडर जोसेफन स्टेलिन अक्यूज्ड द चेचन पीपल हु are Muslim of helping the Germans in the World War II. He abolished ख़त्म कर दिया the country and forced the people on a compulsory migration to Central Asia. Those who survived जो बच गए the journey and the hardship of Central Russia were however allowed to return in 1957. कहता है कि सोवियत लीडर जोसेफ स्टेलिन जो है उसने चेचन पीपल जहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते थे जब जर्मन में जो है वर्ल्ड वार 2 हुई जो है हेल्पिंग द जर्मन जब उसने जर्मन्स की मदद की वर्ल्ड वार 2 में तो उसने ख़त्म कर दिया कंट्री के अंदर जो फोर्स थी द पीपल जो कंपलसरी माइग्रेशन कर दी कि लोग जो हैं वो सेंट्रल एशिया की तरफ माइग्रेट कर जाएं और जब सर्वाइव कर जाएंगे हालात बेहतर हो जाएंगे तो वापस आ जाएं। सेकंड आपकी है इंडिया पाकिस्तान इंडिया 1947 से 50s more than 15 million people were left the standard partition in the wrong part of the land. Muslims in the India, Hindus in Pakistan. So began one of the biggest migrations in the history, with Muslims crossing over the east and mainly west wings of a new country and Hindus to India. With emotions running high, there were mockeries on both sides. Although this was not meant to be, Mr. Jinnah had repeatedly emphasized the rights of the minorities in Pakistan, and Mr. Gandhi strongly protested against the rioting and killing. के दो फिगर थे मिस्टर जिन्ना और मिस्टर गांधी। मिस्टर जिन्ना जो कि राइट्स के हर चीज़ के ऊपर थे, ठीक है, ड्राई ड्यूटीज़ और किसी का डेस्टिट्यूट कोई बंदा ना रह जाए, जो रेफ्यूजीज़ आए उनकी नीड्स पूरी हों, जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ वो मिस्टर गांधी जी एक ऑपोजिट पर्सन था जो राइटिंग और किलिंग के प्रोटेस्टिंग कर रहा था स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट द राइटिंग एंड किलिंग। अच्छा जी, वहाँ पे एक दूसरी चीज़ यहाँ पे कि कितने लोग आए, क्या दोनों तरफ इमोशंस थे, दोनों तरफ लोग सेटल्ड थे और ये सारी चीज़ों ने बहुत डिस्टर्ब किया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज है जहाँ पे चाइना टू ताइवान है, द यूएसए ऑस्ट्रेलिया यूरोप 1948 to 50s when the communist under Mao Zedong defeated the nationalists and set up a communist state. Many millions, especially the nationalist army, fled to Taiwan, which they declared a separate country, claiming it as the real China. Industry flourished there, and the state became prosperous. Other Chinese fled all over the world, and usually because they are very hardworking people, they have prospered in the business. अच्छा जी, क्या हुआ यहाँ पे? कम्युनिस्ट जो थे अंडर माओ जेडोंग जिसने नेशनलिस्ट को डिफीट किया, कम्युनिस्ट स्टेट थी वो, बहुत सारे लोग जो ख़ास तौर पर नेशनलिस्ट थे वो जो थे वो ताइवान आ गए, जहाँ से उन्हें एक अलहदा स्टेट डिक्लेयर कर दी जो कि रियल चाइना क्लेम किया जाता है और इंडस्ट्री वहाँ पे फली बड़ी प्रॉस्पेरस खुशहाली भी आई और अदर चाइनीज़ भी जो थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे आ गए, बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल और उन्होंने अपने बिजनेस को रन अप किया। Caribbean to UK 1950s. After World War II, there was a desperate shortage of labor in the UK. Many men had been killed. Many towns and cities were in ruins from bombing. Industry was stagnant, and of thousands of native Caribbeans, especially from Jamaica, were encouraged to come to Britain work.
Generally, they did unskilled work, drove buses, worked on the railway, but some later reached high professional positions and also became member of parliament. However, the majority of their descendants born and brought up in the UK still live in the city center areas. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद शॉर्टेज होगी लेबर की भी यूके के अंदर, बहुत सारे लोग मारे भी गए, टाउन सिटीज़ तबाह हो गए, इंडस्ट्री वहाँ पे रुक गई, स्टैगनेंट हो गई। Tens of thousands of native Caribbeans, especially from Jamaica, were encouraged to come Britain. वहाँ पे वो इनको encourage किया गया कि ब्रिटेन आए। ख़ास तौर पर जो अनस्किल हैं उन्हें वर्क सिखाया, उन्हें फेंक दिया गया बसेस में, रेलवेज में। बट सम लेटर रीच हाई प्रोफेशनल पोजीशन, लेकिन कुछ जो थे अच्छे पोजीशंस पर भी चले गए। हाउएवर द मेजॉरिटी ऑफ देयर डिसेंडेंट्स बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, क्योंकि उनकी जो ज़्यादातर डिसेंडेंट्स थे, बहुत थे, वो इधर ही पले बड़े, स्टिल इन सिटी सेंटर एरियाज। नेक्स्ट आपका है वो है टर्की टू जर्मनी। जर्मनी वॉज इन अ मोर डेस्परेट plight आफ्टर वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार के 2 के बाद जर्मनी की मज़ीद प्लेटेबल कंडीशन होगी, काबिल रहम। देन इवन इन द यूके से भी ज़्यादा, विद सिटीज़ फ्लैटन एंड इंडस्ट्री लार्जली डिस्ट्रॉयड, के बिल्कुल तहस नहस हो गया, इंडस्ट्री का फ्लॉप हो गया। द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप कुड नॉट हेल्प, दूसरे कंट्रीज ने उसकी मदद भी नहीं की। एंड जर्मन हैड नो कॉलोनीज फ्राम विच टू ड्रॉ लेबर, सो टर्किश लेबर्स were invited from many years. German had a close relationship with Turkey. Tens of thousands of Turkish citizens, while some of them have succeeded in the life, many are still looked down by some German people. ये बहुत ही आसान है कि जर्मनी में भी ऐसी हालात हुई, लोगों को कहा गया कि वो आए, फ्लैटेंड किया गया, खुशामद किया गया कि इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो गई है। दूसरे कंट्री से यूरोप में लोग कुड नॉट हेल्प एंड जर्मन हैड नो कॉलोनीज, लेबर भी नहीं थी, तो टर्किश ने जो है वो अपने गेस्ट लेबर इनवाइटेड किए। बहुत सारे सालों तक जर्मन जो थे वो क्लोज रिलेशनशिप के साथ रहे तुर्की के साथ। 10,000 ऑफ टर्क सेटल डाउन जर्मनी, इतने ऑलमोस्ट 10,000 के लगभग जर्मनी में सेट हो गए। दे वर ओरिजिनली डिनाइड जर्मन्स सिटीजन, जिन्होंने ओरिजिनली जो है वो डिनाई किया जर्मन सिटीजन से। वाइल सम ऑफ हैव सक्सीडेड लाइफ, मैनी स्टिल जर्मन की तरफ चले गए। ठीक है, अगर देखा भी उन्होंने। वेस्ट अफ्रीका to the UK 1950s और 60s, when the British West Africa colonies became independent। जब ब्रिटिश जो है वो वेस्ट अफ्रीका आए तो वो इंडिपेंडेंट हो गए। मैनी ऑफ द पीपल माइग्रेट टू ब्रिटेन, बहुत सारे लोगों ने ब्रिटेन जो है वो माइग्रेट किया, सर्चिंग ऑफ वर्क, काम की तलाश में। फ्रीक्वेंट सिविल वॉर्स इन द रीजन मेड इट अनस्टेबल विद द डिक्टेटर after dictators seizing powers, and this made the people even more anxious to come Britain in search of settled lives। मार्शल लॉ या आप क्या कह रहे, फ्रीक्वेंट जो सिविल वॉर्स थी उसने जो था वो अनस्टेबल कर दिया डिक्टेटर्स को। आफ्टर डिक्टेटर सीजिंग पावर जो थी वो लोगों की थी, फिर भी वो बहुत परेशानी का आलम था कि दोबारा जो है वो परेशान हो गए टू कम इन सर्च ऑफ सेटल्ड लाइफ, की जो ज़िंदगी है सेटल्ड लाइफ उनकी तलाश में। अच्छा बच्चे, व्हेन द पीपल सीक रिफ्यूज इन अदर कंट्री, इन्फो में देखें, फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन इट इज़ नोन एज सीकिंग असाइलम। जब लोग जो है वो इन चीज़ों की तलाश में निकलते तो उन्हें सीकिंग असाइलम भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो आपका लेक्चर हो गया। अब आपके एक लेक्चर की और की रीडिंग रह गई, एक वीडियो और, वो इंशाल्लाह मैं वेडनेसडे को बना दूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।